is the paleomon. Paleomon is called as the common freshwater prawn. All right. So it is very easy to identify based on certain characters, and you can easily identify. सब लोगों ने देखा भी होगा अपने फिश मार्केट में कि पेलियोमॉन जो है commonly available होता है, and you can see here that the body is actually divided into two parts. All right. So there is no division of head or thorax. Rather, there is a presence of a cephalothorax. यानी head और thorax जो है वो fuse होते हैं. Right. So this is the major characteristic of this specimen, that you don't find a complete different head and a thorax. Rather, they both are fused. All right. And if you look at the other structures, then there is abdominal region present, and which has been divided into various segments. So a segmented abdominal is present, as well as a fused head. All right. And this head region contains a rostrum that looks like basically a saw. तो जैसे कि एक आरी होती है, you have seen the saw, and it has this saw-like appearance. Right. So ये उसकी fine edges like structure आपको नजर आ जाएगा easily. Then there are a lot of appendages present. Okay, here, and in total there are 19 pair of appendages. 19 pair होते हैं, and remember that only 5 pairs, that is only 10 appendages, help in the working of this prawn. जो आप यहाँ पे नजर आ रहा है, these are the working appendages. 1, 2, 3, 4, 5 pairs. All right. So rest others are the pyopods और ये सब जो present होते हैं, और uropods present हैं. But you have to remember, or it is very commonly asked, that out of 9 appendages, 19 pair of appendages, how many are the working appendages? So this is only 5 pairs. 10 होते हैं बस खाली, 5 इस साइड में और 5 दूसरी साइड में. All right. Then again you look at the eye region. So there is 2 large eyes present, okay, on the cephalothorax, and they are basically the compound eyes. All right. And then there is the presence of antennae, which you can see here, as well as you can see the antenna here. So this you have to remember. And another important characteristics which is easily identifiable character in case of the paleomon is the presence of this ciliate lag. All right. So that means it contains these chelations or spine-like structures all over the leg, and you can see here this is the ciliate lag, and that contains a cutting-like structure at the end. Okay, so that is very easy to understand. Next specimen which you have to study is the lemulus. Lemulus का कोई common name बताएगा? King crab. King crab, very good. King crab. जी जी, king crab होता है. So this is called as the king crab because of its appearance. कि helmet जैसे king लगाते थे पहले crown, so उस type का इसका structure है. So it looks like a king's crab, right? And you can see this is actually the preserved specimen, and this is a fresh specimen showing the dorsal view and the ventral view. All right. So don't worry कि अब हम आपसे दोनों बनवाएंगे, because time is short. You can only draw the dorsal view. समझ आ रही? So A वाले को बनाना है, B को मत बनाइएगा कॉपी के अंदर जो आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में. तो ये जो डॉर्सल व्यू है, यानी कि जब हम बैक से देखते हैं उसके, तो टॉप व्यू जो आपको नजर आएगा, दिस इज द डॉर्सल व्यू एंड दिस इज द वेंट्रल व्यू जब इसको आप पलट के देखते हैं. So important characters of this king crab is the presence of the carapace of the prosoma. तो जो इसका जो head like structure है, that is called as the prosoma. ठीक है. और फिर जो लास्ट में प्रेजेंट है जो नीचे वाली साइड में, that is called as the mesosoma. All right. And there is a presence of a spine like structure, और जैसे कि एक काटा होता है, बिल्कुल long tail like structure present है, but that is a spinous in nature. All right. And that is called as the telson. So this telson is a stinging structure present in this. Also there are numerous spines present on the mesosoma. तो जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें आपको ये फाइन स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे. ठीक है. These are nothing but the immovable spines. It cannot be moved. All right. So they are fixed to the mesosoma. But this long telson, it is a movable spine. Okay, spiny structure है ये. तो ये इसको अपने प्रे को pierce कर सकता है, but it can cause lot of harm to the prey. All right.
Then another characteristic you can see that on the top view on the dorsal side there are two eyes. ठीक है, two set of eyes. अब इसमें इतना clear है नहीं यहाँ पर, but there are two set of eyes which are present here and that is called as the median eye, क्योंकि वो बिल्कुल middle region में present होती है. And then there are two set of eyes which are present in the lateral region, जैसे यहाँ पर दिख रही हैं. So these are the lateral eyes, जो बीच में present होंगी middle region में median eye, और जो साइड में प्रेजेंट होंगी दे विल बी कॉल्ड एज दी लेटरल आइज, जो इसे यहाँ पर दिख रही है. साइड में प्रेजेंट है दोनों लेटरल आइज. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द डॉर्सल व्यू. अगर आप स्पेसिमेन को उल्टा करके देखेंगे, दैट मींस यू वांट टू सी द वेंट्रल साइड, देन देयर आर फ्यू स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉमन, व्हिच आर वेरी इजीली आइडेंटिफाइबल. फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ माउथ. यहाँ पे आपको उसका माउथ नजर आएगा, दैट इज द ओरल कैविटी. देन देयर आर लॉट ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट. ओके, और उसमें जो है आपके चिलेट लेग्स प्रेजेंट होंगे. समझ आ गई? देन यू कम डाउन, देयर आर लॉट ऑफ दीज स्ट्रक्चर प्रेजेंट. ओके, सो दीज आर हेल्पफुल इन द डाइजेशन एंड दी, और ये सारे उसके प्रोसेसेस के अंदर होते हैं, इसके डाइजेस्टिव ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल वगैरह सब इसी में. देन यू लुक एट दिस डाउन बिलो, जस्ट बिलो द स्पाइन इज द प्रेजेंस ऑफ द एनस रीजन. ऑलराइट, so anus is present on the ventral side tip where the spine is attached to the body. Alright, so जो आपका ये आप पे टेल्सन है जहाँ से अटैच होता है वहीं पर ये एनस प्रेजेंट होती है. तो दिस इज अबाउट द किंग क्रैब. ऑलवेज रिमेंबर, इसमें जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई, प्रोसोमा प्रेजेंट होगा और मीजोसोमा. मूवेबल अपेंडेजेस है, वो सॉरी मूवेबल स्पाइन है एक, और फिक्स्ड स्पाइन जो है वो मीजोसोमा से अटैच्ड होंगे. फिर उसके बाद लेटरल आइज और मीडियल आइज प्रेजेंट हैं. और फिर ऑन दी वेंट्रल साइड आपको रिमेंबर करना है माउथ, ये आपके लेग्स, अपेंडेजेस एज वेल एज दी एनस प्रेजेंट है. ऑलराइट, बाकी आपको ज़्यादा कुछ करने की, जहाँ तक ड्रॉ करने का सवाल है, यू हैव टू ओनली ड्रॉ दी डॉर्सल व्यू, नॉट दी वेंट्रल व्यू. इसको मत बनाइएगा, बस डॉर्सल व्यू बना लीजिएगा, इतना सफिशिएंट है. ये तो सब लोग पहचान ही गए होंगे. दिस इज बटरफ्लाई. ऑलराइट, so butterfly has many genus, or they come under the class Insecta. All right, so what is the special characteristics of class Insecta? पढ़ लिया ना? नहीं पढ़ा भी? हेक्सापोडा क्या होता है? क्यों मारू? व्हाट इज हेक्सापोडा? 6 legs. Yes, hexa means 6, poda refers to legs. So the organisms contains these 6 legs are called as the hexapoda. So insects have 6 legs. All right. So you can see here, अब यहाँ तो legs नहीं नजर आ रहे, but the important identifying characters which you can easily identify in this specimen are the most important are the wings. Okay. तो सबसे पहले जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, वी कैन क्लियरली सी दी ब्यूटीफुल विंग्स प्रेजेंट, एंड देयर आर टू सेट्स ऑफ विंग्स. दीज आर कॉल्ड एज दी फोर विंग्स, जो कि आगे की साइड में प्रेजेंट है, एंड बिकॉज दे आर प्रेजेंट एट द बैक एंड, वन पेयर, इट इज कॉल्ड एज दी हाइंड विंग्स. ऑलराइट, सो two pairs of wings are present. Then another important thing you can see here, eyes are compound eyes which are present, and long antennae are there for the sensory they have the sensory receptors. Right, then the abdominal cavity is there, and the thorax bear 6 pairs of legs, or 3 pairs of legs. Okay, then you can see this is the specimen for Julius, and Julius is commonly called as, इसका common name क्या है? Millipedes. Millipede. Yes, good. So this is called as the millipede. And this is different from centipede, which we have to study in basically the number of segments as well as the presence of the sting glands. All right, और उसके अंदर जो है claws present होते हैं, तो हम उसको भी discuss करेंगे. So first remember that there are a lot of segments present, and in case of this, body is divided into the head and the segmented body, which is the thorax part. All right. So if you look at here, the head contains the antenna and the ocelli. Okay, so eye-like structure जो है उसको हम ocelli बोलते हैं. Then each segment bear a pair of appendages. Alright,
So every segment will have a pair of legs. तो 2 leg present होंगे every segment में. Alright. So this is the characteristic for the millipede. And then you will find a small dot-like structure present all over the segments, and this dot-like structure is nothing but the opening for the sting gland. तो जैसे एक small opening होती है, छेद होता है. Same structure, if you observe it under the microscope, you will find a small opening there. Okay, so don't think it is for excretion or it is for secretion of certain waste or even for sweating. No, they are basically these glands. Okay, opening for the glands, and the glands, they produce a substance which stings. All right, so stink means they are quite noxious in smell. बहुत बुरी सी smell produce करते हैं. And why they produce these stink smell? In order to get in order to be safe from the predators. Okay, they want to be safe from the predators actually. So that's why they produce the stink smell from these sting glands. Okay, तो जैसे ही कोई bird वगैरह आ जाएगी, they start secreting, so they start releasing the stink from these glands, and the bird will fly away. Okay, and leave this millipede unharmed. Okay, an important comment about this Jullus or millipede is that it is a herbivorous. ठीक है, तो लोग डर जाते हैं कि ये काट लेगा, ये कुछ कर लेगा. No, it is not a carnivore. Alright. So and it also does not causes harm. Sting glands की वजह से थोड़ा सा allergic reaction जरूर होते हैं बॉडी के अंदर. So ये नहीं कह रहा कि आप लोग इसको जाके पकड़ लीजिए. No, you don't have to touch it because the secretions of the sting glands could be allergic. Some person could be allergic to the secretions of these glands. All right, but in general, they don't cause harm to humans or any other. They are the herbivores. All right, they feed on the leaves and all other plant matter. Then this one is the Scolopendra, और इसका common name है centipede. All right, और इसमें बहुत बच्चे confuse होते हैं. मैंने ज़्यादातर बच्चों का वाइवा जब लिया है तो लोग जल्दबाजी में कह देते हैं कि सर सेंटीपीड में 100 अपेंडेजेस होते हैं, यानी 50 पेयर्स. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. ये ज़रूरी हो गया 100 पेयर्स हो. अगर आप काउंट करेंगे तो इसमें 100 नहीं मिलेंगे आपको. ऑलराइट, सो जैसे मैंने आपको मिलीपीड में बताया कि ईच सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ अपेंडेजेस. ऑलराइट, सो इफ इट हैज़ टू बी हैविंग 100 अपेंडेजेस, then how much segments should be there? 50 segments should be there. All right, so most of the time it is not 50. Okay, it is in between 30 to 60, 30 to 40. All right, so the number of legs are between 60 to 80. All right, तो इसमें जो है आपको सेंटीपीड नाम इसलिए दे दिया गया था कि लोगों को लगा जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में नहीं रखा था कि इट इज हैविंग लॉट ऑफ लेग्स एंड दिस इज हैविंग 100 legs. So that's why the common name was given it as a centipede. All right, so having 100 legs. So in actual अगर आप काउंट करेंगे so you won't find 100 legs. All right, if you look at the body, it is only divided into two parts. One is the head region, all right, and then the rest is the trunk region. And important characteristics about this centipede is the first segment, which is the head, the first portion what you can see is the head actually. The second segment, this, or it will be called as the first trunk segment. All right, तो head के बाद तो पहला ही segment होगा. The first trunk segment will bear appendages having claws. Okay, तो इसमें जो claws present होंगे, and these claws are modified poison claws. All right, so this is actually quite poisonous. Centipede अगर काटेगा, so you can get a lot of pain as well as sometimes even death can occur. All right, so this is a very toxic or very dangerous insect, arthropod, and you can see here these are these claws. All right, so अगर इसमें क्लियर नहीं यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर डायग्राम में नजर आएगा. These first appendages, they have the poison claws present. All right, and again on the head there are ocelli present which are eye-like structures. All right, हेड पे प्रेजेंट होंगे, एंटीना प्रेजेंट होंगे, ये आपने देख लिया 2 एंटीना प्रेजेंट हैं, और एक इसका कवर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज द सिफेलिक शील्ड. ओके, तो जैसे हेड का हमारे क्रेनियम होता है, ऐसे ही इसकी भी जो शील्ड होती है दैट इज कॉल्ड एज द सिफेलिक शील्ड.
Then you can look at the segments which are present over the trunk. They have the walking legs. All these are walking legs. एक segment पे एक पेयर होगा, यानी दो होंगे appendages, और हर एक appendages के end के ऊपर claws present होंगे. तो ये जो last में आपको नजर आ रहा है, these are nothing but the claws present over the appendages. All right. This is again very common insect, that is apis, जिसको हम बोलते हैं हनी बी. और हनी बी में आपको डिफरेंट आपको मेंबर्स मिल जाएंगे. क्वीन होती है, उसके बाद आपके ड्रोन्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं. ठीक है. सो आई थिंक यू हैव ऑल स्टडीड दिस इन योर प्रीवियस क्लासेस एज वेल एज आयशा मैम ने भी पढ़ाया होगा. सो वी डोंट हैव टू ड्रॉ ऑल दी members of this apis. Rather, we have to just simply draw this diagram in which you have to show the general features of this insect, that is honeybee. And first thing you look for is again the presence of wings. So there is the presence of forewings and the hind wings. All right. तो इसमें इतना क्लियर नहीं है, बट यहाँ पर अगर आप क्लोजली देखें, दिस इज द फोरविंग, और यहाँ पे आप दिस वन इज द हाइंड विंग. ऑल राइट. सो ऊपर वाला फर्स्ट वाला फोर लिम जो आगे प्रेजेंट है, और छोटा जो होगा वो हाइंड विंग होगा. तो ऑलवेज रिमेंबर, लार्जर वन इज द फोर विंग. ठीक. Then you look at the head. There is the presence of a large compound eyes. दो eyes present होगी compound. Then antennae present. All right. And then if you look at the structure of legs, so there is the presence of four leg, middle leg and the hind leg. Okay, इसको divide करेंगे आप अगर leg को. तो पहला जहाँ से body से attached होगा, that is the fore leg, middle part middle leg, और जो last part है that is the hind leg. All right. Then if you look at the abdominal region, it is not segmented. All right. So unlike के उसमें जैसे हम clearly segmented होते हैं, ऐसा नहीं, इसमें abdominal region present है. और इसके बाद यहाँ पर जो है लास्ट में क्वीन के केस में क्या प्रेजेंट होता है, ओविपोजिटर. ऑलराइट. सो दैट डिपॉजिट्स दी, क्योंकि एग्स जो है सिर्फ क्वीन ले करती है, बाकी जो है वर्कर्स जो है दे आर स्टेराइल मेल्स, और ड्रोन्स जो है दे आर दी मेल्स. तो in case of workers, this ovipositor is transformed into the sting of the insect. तो जो आपको काटती है वो, they are not queen or they are not basically the drones, rather they are the workers. तो workers जो है protect भी करती है अपने hive को, and they can sting you as well. Then another specimen, again ये भी बहुत common है, आप लोग एकदम identify कर लिया होगा कि this is the scorpion. Alright. And if you look at the dorsal and the ventral view of this scorpion, and again I'll suggest you to draw only the dorsal view. This is the dorsal view, and B1 is the ventral view. Okay, so you will have to draw in your copy only the dorsal view, and here you can see again the presence of these chelicerae which are present over the head region. All right, and here you will find a set of lateral eyes. तो सेट जब मैंने कहा तो एक नहीं है, मल्टीपल लेटरल आइज है, यानी कि यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ लेटरल आइज आर प्रेजेंट. यहाँ पर आप अगर नजर आएगा आपको, इफ यू लुक एट अंडर द माइक्रोस्कोप. ओके. देन अगेन पेयर ऑफ सेंट्रल और मीडियम आइज आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ दिस रीजन. एंड इफ यू लुक एट अगेन द बॉडी पार्ट विच इज द मीडियम पार्ट हियर, देन देयर इज अ segmentation, and that is called as the mesosoma. All right. So segmented body parts present है यहाँ पर, और last में जो है there is the presence of the metasoma. All right. And जो इसमें यहाँ पर sting होता है, या आप इसको डंक बोल देते हैं कि जो बिच्छू जहाँ से काटता है basically, so it's never stings from this region. All right. So लोग को लगता है कि माउथ से काटेगा, no, it also stings from the tail part, and that is called as the spine or the sting. All right. So this is actually contains the poison. Okay. Then there are working appendages which are present. Okay. And also you can see clearly the presence of the pedicalp. तो लोगों को डर इससे लगता है कि ये ज्यादा हार्म पहुंचाता होगा. No, the actual harm is produced by this spine or the sting. Okay. ये कोई पहचान सकता है? What is this? इसका कॉमन नेम क्या है जी? खटमल. क्या है? खटमल शायद से. नहीं, खटमल नहीं है, बेड बग नहीं है ये. एक्सोडिस
टिक्स के बारे में सुना है? टिक्स, Yes, है ना? टिक्स के बारे में सुना है? टिक्स और माइट्स होती हैं animals पे बेसिकली। रहता है सर। तो एनिमल ये बॉडी पे होती है क्या? जी जी एनिमल बॉडी पे होती है, सही, आपने सही पहचाना बिल्कुल। शीप के, गोट के या आप कैटल के ऊपर आप अपना जो बफलो है, काऊ है, उसकी बॉडी के ऊपर ये दीज आर दी एक्टोपैरासाइट्स। ओके, सो दे लिव ओवर द बॉडी ऑफ द एनिमल्स, ऑलराइट, मैमल्स। So mainly they are found on the body of the sheep or deer or on the body of the goat. तो जितने भी ये herbivores mammals हैं उनके ऊपर ये easily मिल जाती है, ठीक है। Even in case of buffaloes also, cows में भी हो जाती है, ठीक। And there are two types of ticks. They are called as soft ticks and another type is called as the hard ticks. So hard or soft basically arises from the body structure. If they are very soft, okay, so they don't have a hard covering over their body, they are called as the soft ticks. But we have to study in this practical only about the hard ticks, which is the Ixodes. तो ये Ixodes है, इसमें मैंने ये पूरी इसकी complete family है basically. Alright, so I have taken this picture because that will make you realize what is the actual size. तो आप ये finger के size से अंदाजा लगा सकते हैं कि how small are these. Okay, so first one is actually the nymph, okay, just coming out from the egg. Then it is the larval form, थोड़ा time के बाद थोड़ा development हुआ. This one is the male Ixodes and this one is the female. अब इसको फीमेल और मेल को पहचानने का बहुत इजी वो है इसका कैरेक्टर. फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज साइज इन केस ऑफ द फीमेल वन एंड द मेल वन इज द स्मॉलर इन साइज. ऑलराइट, तो जैसे आपने निमेटोड्स के केस में पढ़ा होगा, ऑलवेज द फीमेल इज लार्जर देन द मेल. ऑलराइट, सो यू कैन ऑल्सो सी दैट इन केस ऑफ दीज टिक्स एज वेल, इंसेक्ट्स में भी, if the male is always smaller and the female is always larger. तो कभी सोचा है why the female is larger? Can anybody tell me the reason why God has created such a way that females are larger than the males in case of insects or lower vertebrates, invertebrates? कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? To bear eggs. Very good, फरहान, बिल्कुल सही आपने कहा. Larger body is that because they produce lot of eggs. Okay, so eggs have to be accumulated or they have to be adjusted inside the body. So अगर इसके केस में हार्ड स्केलेटन है तो इसकी बॉडी एक्सपेंड तो कर नहीं सकती, जैसे कि मैमल्स के केस में हो जाता है कि फीमेल बॉडी कैन एक्सपेंड, साइज बढ़ जाता है. सो दैट्स व्हाई गॉड हैज क्रिएटेड और नेचर हैज क्रिएटेड इन सच अ वे that this is larger so that it can occupy more eggs inside the body. Okay, and because males don't have to bear eggs, they are of the smaller size relatively. So actually होना दोनों बराबर चाहिए थे, but just to accumulate more eggs the size is large. और ये सब में lower invertebrates में आप पढ़ेंगे, सब में आपको मिल जाएगा ये. Good. So if you look at the structures here, and another important thing, एक तो आपका size में differentiation हो गया, दूसरा एक important differentiation है. अगर मान लीजिए एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है कि डायग्राम दे देता है दोनों का इक्वल साइज, ठीक है, मेल का भी फीमेल का भी, और फिर कहता है कि आप बताइए मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो देन व्हाट यू हैव टू सी इज द प्रेजेंस ऑफ दिस ओवल शील्ड. ओके, सो दिस ओवल शील्ड जो कि आप यहाँ पे नजर आ रही है, दिस इज ओनली प्रेजेंट इन द हाफ ऑफ द बॉडी इन केस ऑफ द फीमेल्स. देख रहे हैं आप, फीमेल्स के केस में पूरी बॉडी पे ओवल शील्ड नहीं है, बट मेल के केस में पूरी बॉडी ओवल शील्ड से कवर है. So that is the most important differentiating characters apart from size. Size तो बिल्कुल different है. अब मान लीजिए सपोज करिए एक आप यंग फीमेल पकड़ के लिए आए, ठीक है ना, तो उसका साइज मेल की बराबर है, और एक आप मैच्योर मेल पकड़ लें, तो फिर आप कहेंगे सर ये तो दोनों सेम साइज के हैं, और आपने बताया था मेल बड़े होते हैं तो छोटे होते हैं. तो आप फिर क्या करेंगे, आप साइज को तो देखेंगे ही देखेंगे, यू हैव टू सी दी ओवल शील्ड एज वेल. So that will make you realize okay, which one is male, which one is female. So this is the male having the complete oval shield, and this is the female which is having the half of the oval shield. All right. And again there is the mouth part present here, and there is no head region. Okay, ticks में कोई head नहीं होता. Instead there is a false head or capitulum जिसे हम बोलते हैं, gnatosoma भी बोलते हैं, और capitulum. तो आपको ये वर्ड बुक्स में बहुत ही इजीली मिल जाएगा कि कैपिटुलम इज प्रेजेंट इन द टिक्स, एंड दिस इज द रिप्लेसमेंट फॉर द हेड.
एक्चुअल में हेड नहीं होता, हेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. देन अगेन देयर आर दीज वॉकिंग अपेंडेजेस विच आर प्रेजेंट. तो ये आप देख सकते हैं वॉकिंग लेग इसके केस में प्रेजेंट है यहाँ पर, और इसमें ओवल शील प्रेजेंट है. ऑलराइट. देन देयर इज पेडिपेल्प, जो कि जैसे आपने प्रॉन के केस में भी देखा होगा. तो पेडिपेल्प इज प्रेजेंट इन दी नियर दी कैपिटुलम, इस रीजन में प्रेजेंट है. और ये इसका मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कहाँ होती हैं. दे आर फाउंड ऑन दी बॉडी or the body of the mammals, namely the sheep, goats, okay, and the cattle as well. So they are basically the sanguivores. So they feed on the blood of the host. All right. So blood suckers होती हैं basically ये, and then they feed on the blood of the animal. ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हर आदमी ने देखा होगा. This is called as the कॉमन कॉकरोच. ठीक है ना. पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना इसका पूरा नाम अगर आप देखें तो दैट इज द कॉकरोच. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से रोबस्ट एनिमल इन द एनिमल किंगडम. तो व्हाई इट इज कॉल्ड एज सो रोबस्ट? बिकॉज इट हैज सर्वाइव इवन द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर. हिरोशिमा और नागासाकी में जब जापान में अमेरिका ने बॉम्ब ड्रॉप किया था, सो व्हाट हैपेंड, they didn't find a trace of life except the presence of cockroaches. So it is said that they are so robust or they are so hardy that they even survived the nuclear explosion. All right. So और अभी तक आप अपने घरों में देखा होगा, you have used hit और जो भी बेगॉन और तमाम चीज़ें आप लोगों ने यूज करके देख ली होंगी, but you cannot eliminate the cockroaches. You will find them in your kitchen, you will find in the drains, etc. And they are very ugly looking insects, and they also carry a lot of diseases. Diarrhea cause करते हैं, dysentery cause करते हैं. So a lot of alimentary canal related problems is caused by them, and also they harbor a lot of parasites in their body. Alright. So it's not like कि ये सिर्फ हमें ही हार्म करते हैं, ये खुद भी हार्म होते हैं, क्योंकि ये खुद ऐसी जगहों में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है ना. ड्रेन्स में रहेंगे, आपको नालियों में मिल जाएंगे, और आपको गटर के अंदर मिल जाएंगे, सीवर्स में मिल जाएंगे, तो टॉयलेट्स के अंदर मिलते हैं. सो दे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस इन सच अनहाइजीनिक कंडीशंस, they also become infected, and they have a lot of nematodes present inside their body. अगर आप इसको dissect करेंगे, so you will find in the alimentary canal lot of nematodes are present. All right. So we are not going into the detail of that, but I just want to know, make you know कि क्या ऐसा है कि कॉकरोच सिर्फ हमें ही हार्म करते हैं, इनको कोई हार्म नहीं करता. तो ऐसा नहीं है. नेचर हैज़ अ वे टू टेक रिवेंज, और ये भी बहुत हार्म होते हैं. निमेटोड्स इनकी एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं और उसका फूड शेयर करते हैं. फिर दे आर द पैरासाइट ऑन देम. इफ यू लुक एट द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यू कैन क्लियरली सी द प्रेजेंस ऑफ अगेन 4 विंग्स एंड द हाइंड विंग्स, जो कि 2 प्रेजेंट है यहाँ पर. अब इसमें फोल्डेड फॉर्म में है तो नजर नहीं आ रहे, बट एक्सपेंडेड फॉर्म में होते तो यू कैन क्लियरली सी द प्रेजेंस ऑफ द फोर विंग एंड द हाइंड विंग. ऑलराइट. अगेन देयर आर अ सेट ऑफ कंपाउंड आईज व्हिच आर प्रेजेंट, ओके, ऑन द हेड, and then there are antennae which are the sensory structure present. Then there is the thorax is divided into the 3 parts actually, prothorax, mesothorax and the metathorax. तो प्रोथोरेक्स, प्रो वर्ड जहाँ भी आए या फोर जहाँ भी आए तो समझ लीजिए वो आगे वाला पार्ट है. इट इज द फ्रंटियर पार्ट. सो द फर्स्ट वन इज द प्रोथोरेक्स, ऑलराइट, व्हिच इज द लार्जर वन. देन इट इज द मेसोथोरेक्स, यहाँ पे होता है, बहुत स्मॉल होता है. And then finally it is the metathorax, which is the smallest one, which is just present here. Alright. Then again abdominal segment, यहाँ पर इसके नीचे आप देखेंगे तो you will find these abdominal segments, and then the anal style is present at the end. Alright. Then there are certain openings which are called as the spiracles. Spiracles का क्या function होता है? फरहान बताएंगे. Yes, फरहान. क्या सर? स्पाइरेकल्स का क्या फंक्शन होता है? ये जो स्पाइरेकल लिखा है ना यहाँ पे, इसका क्या फंक्शन होता है इंसेक्ट्स में? पढ़ा है? चलो हिंट देता हूँ मैं. गैसियस, हाँ, कौन बता रहा है? गैसियस एक्सचेंज करने के लिए सर. वेरी गुड. गैसियस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन में ये दीज आर दी स्पाइरेकल्स व्हिच आर दी ओपनिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट. ऑलराइट. तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा. चलिए कोई बात नहीं. देन you have to see the lateral view as well. This is the dorsal view.
तो आप इसको डॉर्सल व्यू बना लीजिएगा, लेटरल व्यू बनाने की जरूरत नहीं है कॉपी में। Sorry. So you look at this structure here for the leg. The leg is divided सर again into, डॉर्सल भी बनाना है ना? हाँ डॉर्सल व्यू पहला वाला बस, ठीक है ना। So in case of the legs, you can see the leg is divided into the middle leg, foreleg and the hind leg. तो तीन पेयर होते हैं, 6 legs होते हैं। तो foreleg पहला वाला, मिडल जो मिडल में प्रेजेंट है, और हाइंड जो कि लास्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आपको देखनी है कि मेल और फीमेल इसमें अलग अलग होते हैं, जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं। तो मेल के केस में जो है एनल स्टाइल जो प्रेजेंट है, और इसके केस में एनस सीरस प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये सॉरी सीरस नहीं, सर्कस, ठीक है। और सरकाई बोलते हैं जब पेयर में होते हैं, ठीक है ना। सो एनल, सरकाई और सीरस सर्कस आर प्रेजेंट इन केस ऑफ द फीमेल, ऑलराइट। एंड दिस इज द एब्डोमिनल सेगमेंट। सो सिंपली आपको इसमें डॉर्सल व्यू बनाना है। देन फाइनली जो हम लोग प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कराते थे, तो कॉकरोच का भी डाइसेक्शन कराते थे, ठीक है, और प्रॉन का भी। तो अब थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि सिर्फ और सिर्फ आपके अब सिलेबस में प्रॉन का डाइसेक्शन है, एंड देयर यू हैव टू स्टडी इट्स नर्वस सिस्टम, राइट। तो उसमें अगर आप डाइसेक्ट करें उसको, प्रॉन को, तो उसमें यू कट ओपन दी होल बॉडी, ओके, मीडियली, यानी कि बीच से हम उसको काटते हैं। एंड देन यू विल फाइंड आफ्टर रिमूविंग ऑल दीज मसल फाइबर्स, आप उसको हटा देंगे, यू विल फाइंड दिस ट्रांसल्यूसेंट स्ट्रक्चर, right? So this whitish structure or translucent thread-like structure is nothing but a part of the nervous system of the prawns, right? And on the anterior end, just in the head region, below the compound eyes, these are the compound eyes which are present here. You can see these are the sockets of the compound eyes. The presence of the brain is there. Okay, so brain is anteriorly located, all right, and it is present in the head region just below the compound eyes. तो जहाँ पे अगर आप compound eyes देख रही हो स्ट्रक्चर में, और पूरा लेबल करने की जरूरत नहीं है, जितना भरिएगा मत, जो 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 यहाँ पे फिगर में लेबल्ड हुए हैं बस यही आपको लेबल करने हैं, ठीक है। डायग्राम आप इससे बना सकते हो इजीली, ठीक है। और ये नहीं कि आप बहुत सारे उसमें ये चीज़ दिखाओ कि अंदर अपेंडिजेस ये वो, ठीक है। बस सिंपली आप लाइन ड्रॉ करिएगा, डिवाइड करिएगा, शेडिंग वेडिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और क्योंकि आपको स्टडी नर्वस सिस्टम करना है, वी डोंट हैव टू स्टडी द ऑल द अदर सिस्टम्स इन दिस केस। So simply you have to look for brain, okay, you will find this here. Then the ganglion they split, okay, यहाँ पे आपको ये split होके दिख जाएगा, ventral thoracic, that is the ganglionic mass is present. Then the ganglion which is the central, ये वाली जो आपकी fiber है, nerve cord, this splits into the various nerve to the external muscles. क्यों? क्योंकि जो आपका movement है that has to be controlled, और नर्व इम्पल्स के थ्रू उसका कोऑर्डिनेशन होता है। एंड हियर यू कैन सी दीज आर दी स्ट्रक्चर्स, फाइन स्ट्रक्चर्स बहुत कम नज़र आ रहे हैं इसमें। अगर इसका बेटर व्यू होता तो आपको बहुत क्लियरली नज़र आते। यहाँ पे शायद बना के इन्होंने दिखाया है डायग्राम में कि दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द नर्व कॉर्ड, ओके। सो द नर्व कॉर्ड विच इज द वेंट्रल नर्व कॉर्ड, हियर यू कैन सी हियर दैट दिस हैज बीन स्प्लिटिंग, ओके, इनटू द नर्व फाइबर्स, ओके। And these fibers they supply the muscles, और फिर क्या होगा, सप्लाई होने के बाद they can be used for controlling the contraction and relaxation of the muscles, all right. Then there is a word called as ganglion, okay. So there are two ganglion basically present here. First is called as the ventral thoracic ganglion, जो कि हमने यहाँ पर मार्क किया, जो कि ganglion basically means it is the collection of lot of nerves, okay. So all the nerves present in this region, they combine here, okay, or they are coming out from this region. That's why it is called as the ganglionic mass, all right. And another type of ganglion is present in the abdominal region from which these nerve fiber arise. तो यहाँ पर भी ये आपको एक solid mass सा मिल जाएगा, so that is called as the abdominal ganglion, यहाँ पे मेंशन किया है। आपको बस दो गैंग्लियन मेंशन करने हैं, फर्स्ट इज द वेंट्रल गैंग्लियन यहाँ पर, और दूसरा एब्डोमिनल गैंग्लियन यहाँ पे जो मेंशन किए, ठीक है। फिर उसके बाद आप लेबल कर दीजिएगा ये दो नर्व्स बना के इधर साइड में, एक्सटीरियर नर्व्स, ओके, नर्व्स टू द एक्सटीरियर, और नर्व फाइबर्स कह सकते हैं आप,
एंड फाइनली जो टेल्सन है इसका, जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, दैट इज ऑल्सो सप्लाइड, क्योंकि उसका भी मूवमेंट होना है। एवरी पार्ट हैज टू बी, मूविंग पार्ट हैज टू बी सप्लाइड और इनर्वेटेड। तो इनर्वेशन का क्या मतलब होता है कि उस पार्ट में नर्व्स प्रेजेंट हैं, ऑलराइट। और बाकी जो है स्ट्रक्चर्स, एंटीना है, ये सब नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि यू डोंट हैव टू मेक दैट, ऑलराइट। So simply you have to study the brain, okay, the nerve cord, ventral thoracic ganglion, and the finally the abdominal ganglion. All right. So this is all about this, and a YouTube video is present, जो जिसमें से मैंने ये पिक्चर ली है, मैंने YouTube वीडियो से ली है, उसमें डाइसेक्शन आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है। Okay, so you can see on your screen, this is basically the prawn, which is to be dissected, all right, and ये सब इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को पता ही होगा, आइडेंटिफाई कर लीजिए अगर नहीं पता तो, क्या क्या चीज़ हम इसमें यूज करते हैं। फर्स्ट वी नीड अ डाइसेक्टिंग ट्रे, ओके, सो दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी ट्रे, दिस ट्रे कंटेन्स अ वैक्स कोटिंग, ओके, सो देयर इज अ वैक्स कोटिंग इन केस ऑफ द डाइसेक्टिंग ट्रे। और उसका पर्पस क्या होता है कि वी हैव टू मेक द स्पेसिमेन एज फिक्स एज पॉसिबल, तो उसको हमें एक जगह फिक्स करना होता है। वी डोंट वांट दैट स्पेसिमेन टू मूव वेरी मच, ओके, तो इसको हम पिन्स की हेल्प से पिन अप कर देते हैं इस वैक्स के अंदर, ऑलराइट। सो दिस इज कॉल्ड एज अ डाइसेक्शन ट्रे। तो डाइसेक्शन ट्रे में आपका वैक्स प्रेजेंट होगा, उसमें हम इसको एम्बेड कर देंगे, ठीक है। देन यू नीड अ पेयर ऑफ सीजर्स कट करने के लिए, scalpel which is there, and forceps, sorry, and there is a scalpel, वो जो कि blade like structure होता है। So that is all instrument you need for the dissection purpose, and also you need a needle, alright। अब देखते हैं वीडियो में और आगे ये शो करेंगे कैसे इन्होंने डाइसेक्ट किया है। ओके, सो अच्छा इन्होंने स्किप कर दिया वाला पार्ट, नहीं दिखाया। दे हैव यूज दिस स्कैल्पेल और नाइफ, जो कि आपको नाइफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, टू कट ऑन द मीडियन साइड, ठीक है ना। तो ये मिडिल पोर्शन से हम इसको डाइसेक्ट करेंगे, ये नहीं कि कहीं से भी पीछे की साइड से काट देंगे या लेटरल व्यू से काट देंगे, नहीं, यू हैव टू कट इट फ्रॉम द मीडियल साइड, यानी कि मिडिल पोर्शन से सीधी लाइन में हम इसको कट करेंगे। तो सिंपली यू टेक दिस, ओके, so this is a blade like structure, you simply put a incision here, and from this incision you start opening it, all right, so they are opening the muscles। तो ये मत सोचिए कि ये ऑलरेडी कटा हुआ था, they have cut it with the scalpel, okay, so gradually and slowly you open the prawn, okay, and after opening you will find this structure, okay, so these are the muscles। अब मैंने बताया था कि देखो डाइसेक्शन ट्रे है, अब अगर हम डाइसेक्शन ट्रे में नहीं रखते तो व्हाट विल हैपन, दिस वुड हैव बीन मूविंग हियर एंड देयर, ऑलराइट। सो द पर्सन हु इज डूइंग द एक्सपेरिमेंट, शी हैज पिन्ड अप द स्पेसिमेन यूजिंग दीज ऑल पिन्स, ठीक है ना, जो ऑल पिन्स कॉमनली यूज होती हैं, उससे इसको मसल्स को इन्होंने पिन अप कर दिया है। अब ये मूव नहीं करेगा, इजीली यू कैन ऑपरेट, ऑलराइट, और यू कैन परफॉर्म द डाइसेक्शन। एंड आफ्टर opening this you can clearly see this translucent line, दिख रही है सबको, दिख रही है नहीं दिख रही है? Yes sir, दिख रही है। Okay, so this is the nerve cord, all right, and then let us see what she does next। okay, देखा कैसे इन्होंने उसको पिन अप किया, जहां जहां तक आप उसको ओपन करते जाएंगे आप उसको पिन करते चले जाएंगे। And using this forceps you have to remove the muscles, alright, and very carefully and gently you have to do that, because अगर आपने थोड़ा सा भी प्रेशर डाला your nerve cord will break, alright, so your means the prawns nerve cord will break, alright, so we don't want to damage the nerve cord। अब एग्जाम में तो यही होता था। अब देखो मैम ने एक चीज जो डेमोन्स्ट्रेट करा है, इन्होंने एक चीज यहाँ पे करा, बहुत क्लोजली देखना, ठीक है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है इस पॉइंट पे, ब्लैक दिख रहा है, ब्रांचिंग हुई है, यस सर, ठीक है ना। सो दिस इज द वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड यू कैन सी द ब्रांचिंग हियर। सो दिस इज द लेटरल ब्रांचेस व्हिच इज सप्लाइंग द मसल्स
एंड यू हैव टू बी केयरफुल दैट यू डोंट ब्रेक इट। अब देखो जब ये करेंगी ना तो इनसे ब्रेक हो जाएगी। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि ड्यूरिंग द एक्सरसाइज जब हम लोग कराते थे तो मार्क्स किस पे मिलते थे आपको? आपने काटा, अगर किसी स्टूडेंट ने यही डैमेज कर दी तो सबसे कम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कुछ तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे टेक द ब्रेन एंड द नर्व कॉर्ड इन द इंटैक्ट पोजीशन, बिल्कुल सही निकाल लेते थे, तो उनके 50% मार्क्स वैसे ही मिल जाते थे कि भाई 10 नंबर का सवाल है, 5 नंबर उनके वैसे ही हो गए। बाकी 5 नंबर किसके होते थे? टू मार्क्स और हाउ मच क्लीन स्पेसिमेन इज द ऑड्स। आपने मसल्स को कितने अच्छे से क्लीन किया है जिससे कि क्लियरली दिख रही है, टूटी तो नहीं है बट क्लियरली भी दिख रही है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मसल प्रेजेंट है। सो यू हैव टू रिमूव इट वेरी क्लीन। अगर ऐसे में अगर हम नंबर देने आ जाते सो वी वुड हैव गिवन दिस पर्सन एज 7 मार्क्स, ऑलराइट। अगर इसने बिल्कुल क्लीन करके निकाला होता तो और ज्यादा मार्क्स होते। अब जैसे आप देखेंगे आप इसका ये टूट जाएगा, ऑलराइट। सो यू डोंट हैव टू ब्रेक द लेटरल नर्व्स एज वेल। अब देखिएगा, देखो निकल गया, टूट गया ये, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू ब्रेक दैट, ऑलराइट, यू हैव टू टेक द लेटरल नर्व्स एज वेल। अब बहुत केयरफुली देखिए, ऐसे आपको मसल्स हटानी है, ठीक। यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पे भी लेटरल नर्व्स नजर आ रही होंगी। सो ट्राई टू रिमूव द मसल्स इन सच अ वे दैट यू मिनिमली डैमेज द लेटरल नर्व। देखो यहाँ पे नजर आ रही है एक, मगर यहाँ से पूरा खाली है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं थी। they have been destroyed or broken down during the experiment, alright। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने क्या किया इसके ऊपर, ये चीज, they don't have what you might be thinking that they have put water over the specimen. No, this is not water, this is a buffer, phosphate buffer होता है, ये phosphate buffer saline होता है, you have to use that, alright। और रीजन क्या है कि अगर आपका ऑस्मोलैरिटी डिफरेंस है, तो आपने पढ़ा होगा, अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप सेल को रख दोगे तो क्या होगा, सेल विल बर्स्ट, ओके, और तो सॉरी सेल विल श्रिंक। और अगर हाइपरटोनिक में, गलत बता दिया, हाइपोटोनिक में रखोगे तो सेल विल बर्स्ट, ऑलराइट, और अगर हाइपरटोनिक में रखोगे तो सेल विल श्रिंक। तो यू हैव टू मेक एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्ट कॉम्पोजिशन बाहर और अंदर बॉडी के बाहर सेम होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग बफर, ओके, टू क्लीन दी स्पेसिमेन। अब जो भी यहाँ पे अगर इसके कोई फाइबर्स रह गए हैं मसल्स के, तो इन ऑर्डर टू रिमूव दैट दे हैव सिंपली पोर्ड वाटर, ऑलराइट, वो नो नॉट वाटर, बफर, ऑलराइट। चलिए ये थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा जिससे। Then very carefully you have to remove all the muscles, ठीक है। तो मैं ये वाला पार्ट स्किप कर देता हूँ। Again they have pinned up। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, जो मैं वेंट्रल गैंग्लियन की बात कर रहा था, क्लियरली नजर आ रहा है, बहुत सारी नर्व्स आके यहाँ पर मिल रही हैं, यू कैन सी हियर, यस सर, ठीक है ना। सो दैट इज द वेंट्रल गैंग्लियन, ओके, व्हिच इज प्रेजेंट। दिस इज द वेंट्रल गैंग्लियन, और जो यहाँ पर था ये आपका एब्डोमिनल गैंग्लियन प्रेजेंट था, ठीक। सो और आगे जाएंगे, मैंने बताया था कि बस जस्ट आईज के जस्ट नीचे यहाँ पर हेड रीजन में आपका ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये यहाँ पर दिखाया नहीं है, ये जो है जहाँ से ये स्प्लिटिंग हो रही है, दैट इज द ब्रेन पार्ट। तो मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई थी वो यहीं से ली थी कि दिस इज द ब्रेन, ओके, दिस इज द वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन एंड दीज आर द एब्डोमिनल गैंग्लियन व्हिच आर प्रेजेंट, ऑलराइट, समझ आ गया। तो यू कैन सी दिस वीडियो, मैंने लिंक इसमें आपको शेयर कर दिया है, यहाँ पर लिख दिया है, और मैं इसे अपलोड कर दूंगा। एंड यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन द होल मतलब every system here, you have to simply write about the nervous system of the prawn। तो ये आपको उसमें PS वर्मा में मिल जाएगा, और ये वाला फिगर भी मैंने PS वर्मा से ही लिया है, ठीक है ना। तो उसमें आपको कमेंट्स मिल जाएंगे नर्वस सिस्टम पे। तो ये नहीं कि आप पूरे उसके प्रॉन के सारे स्ट्रक्चर को फिर से लिखें इसके अंदर, नहीं, सिर्फ डाइसेक्शन में आपको लिखना है कि हाउ टू डाइसेक्ट, ये भी उसमें दिया हुआ है प्रॉन का, वहाँ पे आपको कमेंट्स में मिल जाएगा कि you have to cut it open through the medial side, okay, remove the muscles, and then you have to expose the nerve region as well as the brain, alright।
एंड देन यू हैव टू राइट कमेंट्स अबाउट मेनली। तो मटेरियल मेथड में सिर्फ 2 या 3 लाइन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। सर मेथडोलॉजी में क्या लिखते बस तीन लाइन लिखिएगा कि the prawn was taken, okay, and put it on a dissecting tray, and then it was cut open from the medial side, बीच में से काटा गया, and the muscles were removed to expose the nerve fibers as well as the brain। बस इतना लिखना है, 4 लाइन, ठीक है। उसके बाद आपको कमेंट्स में सीधे इसके ब्रेन के बारे में आपको मिल जाएगा, व्हाट इज द ब्रेन लाइक, कहाँ प्रेजेंट है, क्या उसका स्ट्रक्चर है। देन नर्व कॉर्ड के बारे में मिल जाएगा, व्हाट इज वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन, एब्डोमिनल गैंग्लियन, दैट्स इट। बस इससे ज़्यादा ये सब लेबल करने की जरूरत नहीं है, इतना सारा, ठीक है। बस जितना यहाँ पे लेबल हुआ है ये बहुत है आपके लिए। समझ आ गया? सर जी सर। इफायरा लार्वा जो है सर, हाँ हाँ, वो जो लार्वा ओरेलिया का है, तो उसका क्लासिफिकेशन क्या लिखे सर? नहीं उसमें नहीं लिखना क्लासिफिकेशन। ओके सर। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए।